जो अज महान पवित्र गुरपुरब है। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का पावन आगमन गुरपुरब, इस दे उपलक्ष विच आपां गुरु पातशाह जी दे पवित्र जीवन बरतांत विचों कुछ बख्शिशां प्राप्त करनियां ने। अनंत वडियाइयां दे मालक ने गुरु रामदास। एक एक पक्ष सानू अपने जीवन विच दृढ़ करन दी लोड़ है। सारियां तो पहला आप सारी संगत नू समूह नानक नाम लेवा संसार नू लख 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 वधाइयां। गुरु रामदास पातशाह महाराज मैनू इंज लगता है कि गुरु की बाणी दी पंक्ति है, सुन वड्डा आखे सब कोई। सुन के सारी दुनिया वड्डा कहती है। आपां सारे लोगों की यही हालत है। कोई कहता जी अमरीका बड़ा वड्डा है, कोई कहता जी कनेडा बड़ा वड्डा है, कोई कहता जी रूस बड़ा वड्डा है, कोई कहता जी चीन बड़ा वड्डा है। हुण केवट वड्डा डीठा होए वो किन्ना वड्डा है, ये तो भाई वेखिया ही पता लग सकता है। ये गल मैं अपने पिंड विच अपने ही घर विच एक मजदूरी करन वाले एक बजुर्ग दे कोलों सुनी सी। उन्हें ये चार उंगलां जोड़ के हाथ दियां इस तरह अख दे और कन दे विचकार ला के बड़े छोटे हुंदियां गल समझाई सी कि सुनन ते वेखण विच घट्टो घट इन्हां चार उंगलां दी दूरी तो रह जाती है। इन्ना फर्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि रब ने कन दे कोले अख नहीं लाई, अख दे कोले कन नहीं लाया। कन्नां दे सुनन विच अखां दे वेखण विच इन्ना क फर्क तो रहेगा। सुनी गल होर हो सकती है, वेखी गल होर हो सकती है। एक सतगुरु की बाणी तो भी मिलेगा कि जैसा सतगुर सुनी दा, क्योंकि जिहड़ी फस्ट इनफॉर्मेशन है आप जी नूं पता है वो कन्नां तो मिलती, अखां तो नहीं मिलती। जिहड़े बच्चों नूं सुनदा नहीं, जिहड़े बच्चे बोले हुंदे ने, उन्हां नूं अखां नाल वेखियां होईयां चीज़ां दे बारे समझाउण लई बहुत समा लगदा है। उन्हां दे स्कूल भी होर ने, उन्हां दीयां पढ़ाइयां भी होर ने। और एक वेखो रब की नीयत की है कि जिसनों रब ने कन नहीं दिते उन्हों बोलण की दात, जिन्हों कन्ना दे स्रोत नहीं दिते उन्हों बोलण का हक भी नहीं दिता। जिहड़ा जमांदरू बोला होएगा वो गूंगा जरूर होएगा। ये भी ध्यान रखियो जी, क्योंकि उन्हें सुनिया ही नहीं, बोले की।
ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘੁੰਮ ਲਈਆਂ, ਮੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ, ਮਸੀਤਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਲੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਉਗਲੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਥਾਣੀ ਝੋਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਛੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਕਾ ਭਲਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਭਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਪਤਾ, ਭਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਤੇ ਅਸੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਲਾਤੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ, ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਾਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਬੀਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਕਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਬਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ।
असी सुनिया गुरु रामदास बड़े वड्डे ने, गुरु रामदास सच्ची बहुत वड्डे ने। गुरु रामदास जी का आगमन मैं कल भी बेनती की सी, चूनी मंडी विच होया। चूनी मंडी पता नहीं, मैं भी 20 साल ते चूना मंडी कहता रहा। इत्थे पहाड़गंज विच भी एक इलाका है, उन्होंने चूना मंडी कहते हैं। चूना मेरे ख्याल दे विच कली नूं कहने आप, जिन्नी कि मैनू समझ है। पर चूनी हीरे मोतियां नूं कहंदे ने। जिथे हीरे मोतियां दा व्यापार हुंदा है उन्होंने चूनी मंडी कहंदे ने। हीरे मोतियां दे व्यापार वाली गली विच गुरु रामदास जी का आगमन होया। पर जदों 7 साल दे सी, माता पिता मर गए, अकाल चलाना कर गए, दुनिया तो परलोक गमन कर गए, ते हीरियां दी मंडी दी गली दे विच इस बालक नूं कोई रोटी देण वाला नहीं सी। मंडी हीरियां दी है, मोतियां दी मंडी है, बड़े महंगे व्यापार दी गली है, पर उत्थे किसी अनाथ वास्ते प्रशादा नहीं है। तो की करनी इहो जी मंडी, की करनी ते इहो जी गली भी की करनी है। 7 साल की उम्र विच अनाथ होने वाले बच्चे की अज कुल दुनिया शरण मंगती है। रोज़ गुरु रामदास के घर में शब्द पढ़िया जाता है कि एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। जिस 7 सालों के बच्चे नूं दादके नहीं रखते, अज दुनिया कहती है गुरु रामदास सानू अपनी शरण विच रख लो। जे 7 साल के बच्चे नूं कोई रोटी देण लई तैयार नहीं सी, अज उस गुरु रामदास के घर के लंगर तो कदे कोई भुखा नहीं सुता। एडे वड्डे ने गुरु रामदास। उस गुरु रामदास ने सिख की परिभाषा बदली है। जदों तुसी ये कहना, मैं तो रोज़ बेनती करदा भी जे तुसी ये कहो मैं सरदार हाँ, तो मेरे वर्गे नूं हाथ जोड़ के मन लेना चाहिए भी होएगा भाई, अमीरी परे तो परे है, पैसा बहुत है लोगों को। पर जे तू कहे मैं सिख हाँ, तो फिर गुरु रामदास जी नूं पुछना होएगा भी तू सिख हैगा कि नहीं हैगा। सिख दी डेफिनेशन, सिख दी परिभाषा, सिख दी पहचान, सिखी दी निशानी गुरु रामदास ने नियत की है कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। जिहड़ा सवेरे नहीं उठता वो सिख नहीं है, अमीर हो सकता है, मान लेना चाहिए भी अमीर है। सवेरे उठ के इशनान करना होएगा जे तुसी सिख होता, तुहानू पाठ भी करना होएगा, गुरुद्वारे भी जाना होएगा, संगत भी करनी होएगी, किरत भी करनी होएगी। मैनू तो कोई ऐसी भै वाली गल नहीं लगती मैनू कहण दे विच, जिहड़ा किरती नहीं वो सिख नहीं है। वेलड़ बंदा सिख नहीं हो सकता। जिहड़ा आदमी तुहानू कहे ना मैं तो वेला रहना, समझ लेना भी ये सिख नहीं है। हुण तुसी कहोगे भी ज्ञानी जी ये कोई जरूरी है काम करना। हाँ भाई, जाओ किरतियां दे मुल्क विच जाओ, छड्डो वेलड़ां दा मुल्क। अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, लोग सिटी काउंसिल कोल जांदे ने, उन्होंने कहते हैं सानू जॉब दे दिओ। एक जैकेट दे दिओ ट्रैफिक वाली, एक स्टॉप साइन दे दिओ,
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਡਸਨ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਹੋਣ, ਡੈਸਕ ਹੋਣ, ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹਵਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਢ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੱਢ। ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੀਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਖੀਰ ਵੀ ਕੱਢ। ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਲਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ CID ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਬ ਹੋਣਗੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸਾ ਪੈਸਕਾਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
पर जिस शानो शौकत नाल गुरु रामदास के घर विच गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी आउंदी है, कोई दुनिया के राजे की नहीं आउंदी किते भी। दरबार पहला सजिया हुंदा है जदों सवारी आउंदी है, दरबार अजे भी सजिया हुंदा है जदों सवारी चले जाती है। प्रकाश का स्थान वखरा है, सुखासन का स्थान वखरा है। तुहानूं पता है तुहाडे धर्म दे विच गृहस्थ की प्रधानता है। दुख इस गल दा भी जिहड़ा गृहस्थी नहीं अज वो भी सिखां तो मथे टकाई जाता है। पुछो बाबा श्री चंद जी नूं, बाबा श्री चंद ने जदों गुरु हरगोबिंद साहब नूं पुछया, उदासी मत बाबा श्री चंद जी तो शुरू होया है ना। विआह ना करन दा फैसला बाबा श्री चंद जी ने कीता कि मैं विआह नहीं करना, पर जदों बजुर्ग हो गए तो गुरु हरगोबिंद पिता नूं पुछया कि हरगोबिंद किन्ने पुत्र ने? उन्हें कहा बाबा जी 5 सी, एक चला गया, एक नूं परमात्मा ने अपने कोल बुला लिया। कहन लगे साडे जोगा भी है कोई? उन्हें कहा जी सारे ने। कहन लगे एक दे दिओ। उदासी मत चलाउण वाले बाबा श्री चंद ने अखीर गृहस्थी गुरु हरगोबिंद पिता कोलों पुत्र मंगिया। ये तुहाडा इतिहास है, ये ठीक है। मंगिया ही नहीं, एक गल होर भी कही, आख्या गुरु हरगोबिंद साहब जो साडे पिता कोल सी वो पहले ही तुहाडे कोल है, ते जिहड़ा मेरे कोल बचिया सी अज वो भी तुहानूं मिल गया। ते बाबा गुरदित्ता जी कौन सी? वो भी गृहस्थी सी। अखीर बाबा श्री चंद जी नूं अपनी गद्दी गृहस्थी बाबा गुरदित्ता जी नूं देनी पई। वो बाबा गुरदित्ता जिन्हां दे छोटे सपुत्र 7वें गुरु गुरु हराए साहब होए ने। उस गृहस्थ दियां मर्यादा लावां तुहानूं गुरु रामदास ने बख्शियां। जे किसी ने गुरु रामदास नूं मनना होवे ना तो पहला गुरु रामदास जी नूं सुन लिओ जे, समझ लिओ जे। मैं कल कथा इत्थे समाप्त कीती सी कि गुरु अमरदास जी दे महल वो पुछदे ने कि बीबी भानी वास्ते कोई लड़का होवे। बीबी भानी वरण योग है, विआउण योग है। हुण तो साडे ये गल तो लंघदी नहीं ना किते लागे छागे किते, कि सानू ये भी सोचना चाहिए भी बच्चा विआउण योग है। नहीं जी, अजे एक बच्चा पढ़दा है। मैं बहुत वारी गल सुनाई, मेरा एक दोस्त सी, तकरीबन ओदा ते मेरा आनंद कारज अगे पिछे थोड़े टाइम का ही फर्क होएगा, पर मेरे तो उम्र च बड़ा वड्डा सी। तो मैं उन्होंने पूछया भी, मैं कहा भी तेरा ब्याह लेट क्यों होया है? वो कहता भी जदों घर आउंदे सी ना लड़की वाले तो मैं कहता हुंदा सी भी मैं नहीं करना। तो कहता मेरे मन च हुंदा सी भी जे मेरी मंगनी हो गई तो मुड़ के लड़की वाले आउणों हट जाणगे। कहता पता ही उदों लगा जदों आउणों हट गए। आपां गृहस्थी हाँ, ये गल कहनी कि बच्चे ब्याह नहीं कराउणा चाहुंदे, इहदे लई तुसीं जिम्मेवार हो, क्योंकि तुसीं पहलां बच्चों का ब्याह करना नहीं सी चाहुंदे। अजे छोटा है जी, अजे पढ़दा है जी, तो जदों बहुता ही पढ़ गया हुण बाबा जी तुसीं बच्चे दे ब्याह बारे कुछ करो। हुण दसो बाबा जी की करना? ये गल शुरू तो कहनी चाहिए सी। साडियां मावां
ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਜ ਕਾਜ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੀ ਸੀ, ਖੇਸ ਬੁਣਦੀ ਸੀ, ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਾਉ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੇ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਸਗਨ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਗੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਢ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਉ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਗਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਚਾਉ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਰਨਾ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲక్ష్ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਗਰ ਟਰੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਤਰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਬੱਚਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੱਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੜਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਨਾਣ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਜੰਮੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਕੰਡੇ ਲਾਤੇ ਧੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾ ਜੰਮੋ। ਇੰਨੀ ਨਿੱਘੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ। ਆ ਪਿਛਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਵੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ?
पैसा 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 पैसा, किहड़ा पैसा? इस पैसे ने थोड़ी पत रोलती। इस पैसे ने, भाई जेठे कोल कोई पैसा नहीं सी, दीन दुनिया के पातशाह गुरु अमरदास ने रिश्ता कर दिता। मैं कल भी बेनती की सी, आपां भी धीआं विआहणियां ने, 3 गल्लां गुरु अमरदास जी तो सीख लो कि जदों धी विआहणी है, मुंडे विच 3 गुण जरूर होण। गुरु घर का सेवक होवे, बजुर्ग माँ बाप की सेवा करन वाला होवे, ते किरती होवे, भावें घुंगणियां ही वेचदा होवे। किरत च बरकत तो उन्हें पाउणी है। आपां ना गुरुद्वारे आउणे आ, महाराज जी बरकत पाओ, पुछो काहदे च पाउणी बरकत? तू रक्षा चलावे तो वाहिगुरू बरकत पावे, तेरे ट्रक बन जाण। तू रेड़ी ला के फड़ी ला के तू मूंगफली वेचदा होवे ते महाराज बरकत पाउण, तेरे शोरूम बन जाण। तेरे कोल ते है ही कुछ नहीं, बरकत पावे काहदे च रब? आप बख्शिश लेना किद्दां चाहुंदे आ? रब नूं सानूं मिलण दी सोझी कोई नहीं है, क्योंकि इत्थे बवांगे फिर समझ आएगी एक उत्तम पंथ। सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मटाई। इत्थे ते मड़ियां मसाणियां भूतां प्रेतां ते कबरां ने साड़ियां लीकां कढ़ाइयां पईयां ने। गुरु दे सिख दे नेड़े जमदूत नहीं आउंदे, भूतां दा की मतलब है जी? एक उत्तम पंथ, इनू फिर पढ़ियो जी। सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। जमा का डर भी नहीं होएगा तुहानू। जम कंकर नेड़ ना आया, सुख नानक शरणी पाया। गुरु रामदास दियां बहुत वडियाइयां ने। बड़ा वड्डा गुरु रामदास है। मैं कई बारी बेनती की थी, गुरु रामदास जी ने कीता की है? अमृतसर साहब की मोड़ी गड्डी है, नगरी वसी नहीं सी उदों। अमृत सरोवर का टक लाया है, सरोवर बनया नहीं, जल भरिया नहीं, गुरु रामदास जी ज्योति जोत समा गए। पर एडा नेक, एडा लायक, एडा योग सपुत्र गुरु रामदास ने सानू बख्शिया। भट्टा दे सोईए पढ़ो फिर पता लगता। रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जन माहे धरी। ते गुरु अर्जन साहब ने किते नहीं कहा कि यह घर मेरा है, ये नगरी मेरी है, ये हरिमंदर मेरा है, ये सरोवर मेरा है। आख्या नहीं, ये मेरे पिता का अस्थान है। इन्नी नेक संतान, इन्ना लायक पुत्र, एडे योग सतगुरु नूं गुरियाई बख्शी गुरु रामदास ने। आपां जदों इथों भी तुरते हैं ना, आप कहने भी गुरु की नगरी, हालांकि गुरु की नगरी आनंदपुर साहब भी है, गुरु की नगरी कीरतपुर साहब भी है, गुरु की नगरी करतारपुर साहब भी है। ये सारे नगर गुरुआं ने आप वसाए ने। पर जब जिहड़ी चीज़ साडे दिलों दिमाग दे विच है, जदों गुरु की नगरी कहोगे उदों तुहाडे मूँह तो निकलेगा धन गुरु रामदास। इस कदर साडे दिलों दिमाग दे विच उतरिया होया वो सारियां तो वड्डा गुरु रामदास है। गुरु रामदास पातशाह का दाड़ा सब तो वड्डा सी। शायद पता होवे आप जी नूं, सब तो लंबी दाढ़ी गुरु रामदास जी दी सी। तो बाबा श्री चंद जी ने पूछ लिया, रामदास ये दाढ़ी क्यों वधाई है? कह लगे जी तुहाडे वर्गे महापुरुषों के चरण झाड़न वास्ते।
उदन भी कहा सी बाबे श्री चंद ने, इहो ही कारण है कि तुसी बाहरों आके घर दे मालक बन गए, असी घर वाले हुंदे भी घर दे मालक ना बन सके। सानू ना बाबा श्री चंद जी का विरोध नहीं करना चाहिए। इको गल जिहड़ी सब तो वड्डी है वो गुरु का पुत्र है। बस गुरु के पुत्र होना कोई छोटी गल नहीं है। अगर कोई उन्होंने अपने गुरु पिता का वचन नहीं मन्निया, ये फैसला गुरु नानक साहब ने करना, ऐसी नहीं करना। मैं तो इतिहास में यही पढ़िया कि जदों बाबा श्री चंद आए, एक घोड़ा ते 500 रुपया सारे गुरु साहबाना के समय जदों तक बाबा श्री चंद रहे, ये उन्होंने दर्शन भेंट होंदी सी। पर सब तो वड्डी गल जिहड़ी गल उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब नूं कही, आख्या जो साडे कोल पहला सी, जो साडे पिता कोल पहला सी, वो तो तुहाडे कोल पहला ही है, तो जो साडे कोल बचिया सी अज वो भी असी तुहानूं दे देण लगे हैं। उदासी मत भी गृहस्थी बाबा गुरदित्ता जी दे समय एक गृहस्थ विच प्रवान हो गया। क्योंकि उत्थे बाबा श्री चंद जी ने तो नहीं ना पूछा भी गुरदित्ते का विआह होया कि नहीं होया। उदों तक बाबा गुरदित्ता जी दे 2 सुपुत्र सन, बाबा धीरमल ते गुरु हराए साहब। इस करके कोई अज ये कवे कि नहीं जी उदासियां दे विच विआह करन दी प्रथा नहीं है, नहीं, वो बाबा श्री चंद जी वो भी मुका के गए ने, वो भी गृहस्थ नूं प्रवान चढ़ चुकी है। मैं होर बेनती करा, कोई विआह ना भी करे, सानू झगड़ा नहीं करना चाहिए। पर अगर तुहानू कोई ये कवे, जिवें अजकल लोग कहते हैं जी चाह नहीं पींदे, ना ही चाह पींदे तो की करिए, मत्था टेकीए फिर असीं। कोई चाह ना पीवे, कोई लसन ना खावे, कोई प्याज ना खावे, कोई गृहस्थ ना धारण करे, ये उहदा अपना विवेक है। पर इस करके आप कदे भी किसी को श्रोमणी नहीं कहना, सर्वोत्तम नहीं कहना। उसकी अपनी करनी है, वह अपना निजी जीवन है। सानू ये भी नहीं कहना चाहिए भी वो क्यों नहीं करता, वह अपना विवेक है। पर सिख होने के नाते गुरु रामदास पातशाह की बधी मर्यादा कि पातशाह ने 4 लावां का पाठ तुहानू बख्शिया है, सानू इहदा सन्मान करना चाहिए। आस करो जीवन दे विच कि वो 4 लावां का पाठ तुहाडी जिंदगी में एक बारी जरूर होवे, तो उदों ही होएगा जदों विआह करोगे, उदा नहीं जी होना। जे आपां कहीए ना भी आपां ते जी कल्ले ही रहना है, तो फिर गुरु रामदास पातशाह दीयां लावां का पाठ तुहाडी जिंदगी च नहीं हो सकता। गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हां ने सानू अमृतसर साहब की नगरी बख्शी है, अमृत सरोवर बख्शे है, बेअंत बख्शिशां कीतियां। तो मैं पिछले दिन ही बेनती की सी भी अमृतसर साहब दे विच एक मंदिर भी है। सनातन मत विच बड़े मंदिर ने, माता वैष्णो देवी का मंदिर है। जे आप इधर हेमकुंड साहब नूं जाने आ, बद्रीनाथ का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर है, आनंदपुर साहब के कोल नैना देवी का मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर है, चिंतपुरनी का मंदिर है, एक मंदिर अमृतसर साहब के विच भी है। वो पता नहीं उतों के प्रबंधकों नूं किवें कोई गल औड़ी होनी है कि आप इदा करिए भी आप जिदा का दरबार साहब है ना, आप ये मंदिर भी उदा का ही बना लीए। शायद मन च फुरना आया होएगा भी अद्धी संगत इधर आई जाया करेगी। हुण उन्होंने मंदिर नूं
दरबार साहब वर्गा बनाना शुरू कर दिता। बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले उदों जिउंदे सी। किसी मेरे वर्गे सिख ने जाके कहा कि बाबा जी ये तो गल ठीक नहीं कि कोई मंदिर वाले हरमंदिर साहब की कॉपी करन, नकल करन। ते बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले कहते तां की होया। हौली हौली उन्होंने सरोवर दियां पौड़ियां बना लईयां, दर्शनी ड्योढ़ी बना लई, उदां दा रस्ता भी बना लिया। वो गल चलती रही भी हुण जी उन्होंने ड्योढ़ी भी बना ली, रस्ता भी बना लिया, परिक्रमा भी उदां दी कर लई। तो बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले कहते तां की होया। वो मेरे वर्गा उबल गया। वो कहता बाबा जी होया ही कुछ नहीं। वो कहते भाई नहीं होया। क्यों नहीं होया? बाबा जी बड़ी हलीमी नाल कहते भाई मैनू क्यों पुछदा है, हुण ये गल ते जाके मंदिर वालियां नूं पुछ भी तुसी दरबार साहब वर्गा सरोवर भी बना लिया, पौड़ियां भी बना लईयां, ड्योढ़ी भी बना लई, रस्ता भी बना लिया, तो गुरु रामदास कित्थों लियाओगे? वडियाई गुरु रामदास दी है, पौड़ियां दी नहीं है। वडियाई ड्योढ़ी दी नहीं है, वडियाई गुरु रामदास दी है। वो कित्थों लियाओगे? जिहड़ी महिमा है वो गुरु रामदास दी है। ये गल अपने दिलों दिमाग में चेते रखना। कई जाते ने हरमंदिर साहब, पर चेता रखना तुहानूं गुरु रामदास मनाउणा पैना है। उहदी सिੱਖੀ ਦੀ परिभाषा नूं जीवन विच लियाउणा पैना है। उहदियां बख्शियां लावां नूं अपने जीवन विच पढ़ना पैना है। उहदे घर दी जिहड़ी मर्यादा है ना, उसनूं अपने जीवन विच कमाउणा पैना है। मैं ऐसे सिख वेखे ने, सुने ने, वो उठ जाते ने। पुछया की होया? कहते महाराज की सवारी कोठा साहब तो चल पई है। सौंदे नहीं जिन्ना चिर महाराज का सुख आसन नहीं हुंदा। हुण इहनूं आपां गिणतियां मिणतियां विच पाईए, जमा घटाओ विच पाईए। इन्हां भावनावां दा सन्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए कि इस कदर भी गुरु नूं जिउंदे ने लोग, इस कदर भी गुरु नाल जिउंदे ने लोग। इन्हां भावनावां दा आदर करना चाहिए। जिहड़ी कथा लड़ीवार चल रही है ना, वो कथा भी गुरु रामदास दे घर दी है। अज दी कथा विच दरबार साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होना है। बीड़ लिख ली गई है। गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना हो चुकी है। उहदी जिलद भाई बन्नों जी लाहौर तो बना के ले आए ने। गुरु अर्जन साहब ने सारी मर्यादा दृढ़ करा दी है। भादों सुदी एकम का दिन है, जिस दिन ये बीड़ तैयार हुई है। सच्चे पातशाह ने मर्यादा समझाई और फिर की आख्या? आख्या भाई आपां अज दी रात इत्थे गुजारांगे। जदों कल सवेर होएगी तो ये गुरु ग्रंथ साहब जी का ये जिहड़ा पावन स्वरूप है, उदों गुरु ग्रंथ साहब नहीं सी कहंदे, उदों पोथी साहब कहंदे सी, पोथा साहब कहंदे सी, ग्रंथ साहब कहंदे सी। पर एक गल जिहड़ी परसों की कथा विच आपां सुनी है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना तो बाद अजे गुरु करके मनण दा सानू हुक्म जिहड़ा गुरु कलगीधर पातशाह ने कीता, अजे वो नहीं सी होया। अजे उहदे विच 104 साल बाकी ने। उस टाइम तो 104 साल पहले ही ये गल कह दी कि ग्रंथ रिदा गुर को यह जानो उत्तम है, सब काल रहे है।
इस ग्रंथ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ श्रेष्ठ है, ਇਹ उत्तम है। काल कोई भी होवे, युग कोई भी होवे, समा कोई भी होवे, ये ग्रंथ सदा रहेगा। ताई आप जुगो जुग अटल कहने हैं ना, युग बदलते रहणगे पर यह ग्रंथ अटल रहेगा।